oxide, what we are going to do, we are going to take any metal oxide, let us assume magnesium oxide, and if it reacts with acid, we obtain corresponding salt and water. So metal oxide plus acid gives you salt and water. Here you can easily see how reaction is occurring. A very important reaction usually asked in exam is CuO plus HCl gives you CuCl2 plus H2O. It's a very common reaction, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक कलर का कंपाउंड है, इट इज मेड टू रिएक्ट विद अ कंपाउंड व्हिच इज sour in taste or which turns blue litmus red, and the resultant compound is blue green color, and we obtain correspondingly water. So what is compound A, which is black in color? What is compound B, which is bluish green in color? So here black color is copper oxide and bluish green is copper Copper chloride. chloride. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. So we will call it as cuprous oxide. A very important thing, this is cuprous oxide and this is cuprous chloride. Now किसी को पता है cuprous और cupric में क्या अंतर है? Sir, oxidation state एक का सेकंड बेटा, difference. ये cupric है बेटा, cupric है, सॉरी सॉरी, ये cupric है. This is cupric oxide and this is also cupric chloride. Now copper exists in +1 and copper exists in +2 oxidation state. ठीक है. These are the oxidation number. I guess, I believe I have discussed oxidation number with you. ठीक है. तो आप देख सकते हैं जो रेसिडुअल चार्ज किसी भी एटम पे होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो जो लो, जब कोई एक मेटल X है उसका एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. जो लोअर चार्ज जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं अस, और हायर चार्ज के लिए यूज करते हैं इक. एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली आप आयरन की बात करूं, आयरन भी दो तरीके का आयन देता है आपको. एक देता है Fe2+ और एक देता है Fe3+. ये +2 वाला क्या होता है? फेरस. और +3 वाला होता है फेरिक. याद रहेगा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, a very sir. important reaction, I believe you all should remember this. The next property I want to tell you is acid have corrosive nature. ठीक है. corrosive nature का मतलब ये है कि it can harm our body. ठीक है. when we comes in contact with the acids, so these mineral acids can cause severe burn on the skins and may attack materials like clothes, wood, metal, or any structure. So they are said to be corrosive. That's why we call them corrosive. Here corrosive means easily highly reactive in nature. So whenever it comes in contact with the human body or any living organism or any substance, it reacts with that vigorously, and that's why we call it as corrosive, because that reaction is harmful for anything. I hope this point is also clear to all of you. Yes, sir. But acid Sir. is corrosive in nature. नोट किया जाए इसको. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो लास्ट क्लास में क्या हम सभी ने अरेंजर्स कंसेप्ट सीखा था? Yes, sir. Sir. अरेंजर्स कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो मैंने अरेंजर्स के अकॉर्डिंग बताया था कि एसिड क्या होता है. अरेंजर्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको, एक सेकंड को.
अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड वो है जो वाटर में आपको H+ आयन दे। Am I right? मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड सारा बताया हुआ है। तो Yes, sir. सपोज ये HCl है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में डालोगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H+ आयन में और OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। और आपको पता है लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कराता है? आयंस कराते हैं। तो दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये वीक एसिड होता है, तो ये पार्शियल डिसोसिएशन शो करता है। तो वी ऑब्टेन एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। Again we are obtaining H+ ion, but the H+ ion here is less in number as compared to this. Even if we are taking the equal moles of these particular compounds, even if the concentration of both of them are equal, still H+ ion will be lesser in the acetic acid because it shows partial dissociation, but still it will be acting as an electrolyte due to presence of free ions. Now if I ask you, is it an electrolyte? If I ask you, is it an electrolyte? तो क्या ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे? क्या ये भी एसिडिक नेचर शो करेंगे? ये क्या है? इथेनॉल है। ये क्या है? ग्लूकोज है। तो इसमें भी तो हाइड्रोजन आयन है। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और क्या ये एसिडिक नेचर शो करेगा? सर नहीं। वाई? सर बिकॉज इसमें आयंस जो है फर्निश नहीं होंगे वाटर में, मतलब एंड आई थिंक वो एटॉमिक बॉन्ड्स जो होंगे वो काफी स्ट्रांग है, इस वजह से यस, बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। वेरी गुड। सो हियर द बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट इन नेचर, ठीक है। जब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण चेंजेस आते हैं तो उसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप होती है, चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके कारण हम बोलते हैं कि यस इट इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप ले लिया है। इस सेटअप में आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि इस पर्टिकुलर बीकर में क्या है? HCl है, इनफैक्ट डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट HCl आपको H+ देगा एंड OH नेगेटिव देगा, है ना। सो हाँ, OH नेगेटिव देगा लेकिन बहुत कम देगा, फिर H+ देगा, Cl नेगेटिव देगा। यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब इनका सॉल्यूशन लिया गया और इस पर्टिकुलर सेटअप में ऑब्जर्व किया गया तो ये किया एसिड के केस में हुआ। अब देख सकते हैं बैटरी है, बैटरी का एक पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है बल्ब से और दूसरा पॉइंट स्विच के थ्रू ये जा रहा है, सर्किट ये जा रहा है। जब तक ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक ये ग्लो नहीं करेगा। और इसको कनेक्ट करने के लिए ये लिक्विड काम करेगा। अगर ये लिक्विड कंडक्टर होगा तो ये कनेक्शन बन जाएगा और नहीं होगा तो नहीं बनेगा। नाउ डाइल्यूट HCl ये बल्ब ग्लो करता है, लेकिन आपका जो ग्लूकोज है नहीं करता क्योंकि इसमें होते हैं फ्री आयंस, इसमें नो फ्री आयंस, and due to no free ions it does not glow the bulb, which is a sign that it is not undergoing dissociation like the acid is undergoing in the water. Am I right? यस Yes, सर। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार रिपीट कर लीजिए। ले लिया सर। Very good. Yes, sir. Now I want to discuss another case with you कि क्या एसिड पानी के एब्सेंस में भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा? नो सर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है देख लेते हैं एक बार। इसने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई है H2SO4 से, ठीक है। सो इट इज सेइंग कि Na2SO4 बनेगा एंड HCl गैस जो है वो रिलीज होती है। तो अब देख सकते हैं इनकी रिएक्शन हुई आपस में, तो सोडियम सल्फेट बना एंड इट इज गिविंग अस HCl। नाउ रिमेंबर दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए रिएक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। नाउ वी आर ऑब्टेनिंग HCl गैस। इस HCl गैस पे लिटमस पेपर एक्सपोज कराया गया। जब इस HCl गैस पर लिटमस पेपर एक्सपोज कराया गया तो क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि जब सिर्फ और सिर्फ HCl गैस इस पे आ रही थी, देयर वाज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। लेकिन जैसे ही आपका ये लिटमस पेपर ये वेट हुआ, HCl गैस जो है दैट शोड इट्स एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि आपका जो वेट लिटमस पेपर है उसमें वाटर है और वाटर के कारण HCl डिसोसिएशन शो कर सकता है and it will give you H plus and Cl negative, and due to this H plus ion again your litmus paper can show its changing color। क्या ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Girls, I cannot hear you. Am I audible to all of you? हाँ बेटा, सर एक बार फिर दोबारा समझा दीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ बेटा, बताओ अगर समझ नहीं आए तो बताना है, बिकॉज दिस इज द ओनली सोर्स वेयर यू आर गोइंग टू लर्न। ये रिएक्शन क्लियर है बेटा? NaCl की रिएक्शन H2SO4 से हुई, H2SO4 ने सोडियम के साथ बनाया ये सॉल्ट, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने बनाया ये HCl गैस। मैं ये कह रहा हूँ कि जो HCl गैस है ये गैसेस फॉर्म में जब होता है तब ये H प्लस और Cl नेगेटिव नहीं देता। इसको अगर ब्रेक कराना है तो एक्वस मीडियम में ही हो सकता है, एक्वस मीडियम में ही आपको H प्लस और Cl नेगेटिव देगा, यानी कि पानी में ही देगा। इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने एक लिटमस पेपर लिया, इसके ऊपर HCl गैस इंपोज कराया। आपको पता है लिटमस पे ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड के कारण, एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। गैसियस HCl के कारण कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नो चेंज। लेकिन जब मैंने HCl लिया एक्वस फॉर्म में, उसी लिटमस पे एक्सपोज कराया तो क्या हुआ, इट टर्न्ड ब्लू लिटमस रेड। ये शो करता है कि जैसे ही ये वेट लिटमस पेपर मैंने लिया, दिस वेट लिटमस पेपर्स वाटर helped this particularly HCl to dissociate into H plus and Cl negative। समझ में आया क्या? Sir, एक यस बार सर। repeat कर दो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लो। Yes, sir. ओके, अब हम बात करेंगे यूजेस की। यूजेस में आपको ओरली डिक्टेट कराऊंगा, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो मैं बात करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। इट कैन बी यूज्ड इन पेंट्स, इट कैन बी यूज्ड इन डाइज, in chemicals, making of plastics, making synthetic fibers, making detergents, explosive, and even car batteries. Noted? सर तभी ये बैटरी एसिड भी कहलाता है क्या? क्या बेटा? सर तभी इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं क्या? हाँ, इसको बैटरी एसिड इसीलिए कहते हैं। ठीक है सर। एक बार फिर बताओ। Sir, repeat. तो मैंने बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, पहला पेंट्स बनाने में यूज करते हैं, डाइज बनाने में यूज करते हैं,
केमिकल्स बनाने में यूज करते हैं, डिफरेंट प्लास्टिक्स बनाने में यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स, कार बैटरीज, एक्सप्लोसिव्स। फिर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड्स की। नाइट्रिक एसिड्स को भी हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में। इसको हम एक्सप्लोसिव्स में भी यूज करते हैं, जैसे टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन भी नाइट्रिक एसिड की हेल्प से ही बनाया जाता है। डाइस, plastics, these all are compounds where nitric acid can be used as a raw material. Hydrochloric acid is used for removing oxide film from the steel objects. बिल्कुल सही है बेटा। कई बार क्या होता है, आपके स्टील के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके, तो उसके कारण उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है उसके कारण उस कोरोजन हो सकता है फर्दर। तो उस कोरोजन के लेयर को हटाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, और इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ रिमूविंग ऑक्साइड लेयर। क्या ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बेसिस की। बेसिस, अगर बेसिस की बात करूं तो दे आर chemically opposite to acids। बिल्कुल एसिड से ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है ये। नाउ बेसिस की बात करूं तो दे आर बिटर इन टेस्ट। अगर इसके टेस्ट की हम बात करें तो बिटर टेस्ट में होते हैं। सोपी टू टच, आप सभी घर में सोप होगा, आपने सोप के सॉल्यूशंस को कभी ना कभी ट्राई किया ही होगा हाथ पे रब करके, एंड यू नो हाउ मच स्लिपरी इट बिकम्स, दैट इज सोपी नेचर। नेक्स्ट, it can also act as an electrolyte, and I hope you know that electrolytes are those substances which can conduct electricity. So I can say that bases are also capable of conducting electricity. क्यों है ये? ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस के प्रेजेंस के कारण इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक सभी को समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, लिटमस एक्शन कैसा होगा? इट टर्न्स Red litmus blue. रेड लिटमस ब्लू। नाउ मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? ऑरेंज से येलो हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में बेस में ऑरेंज से येलो होता है। तो दिस इज हाउ इट बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। आई होप ये राव और बॉय का कंसेप्ट आपको आता है। राव Yes, sir. क्या है? एसिड में ऑरेंज से रेड, बॉय क्या है? बेस में ऑरेंज से येलो। तो ये एक तरह का चीट कोड है, आप याद कर सकते हो उसको, और आपको ये बहुत मदद भी करेगा। Okay, sir. ठीक है, देखो कुछ बेसिस जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं, एंड दैट वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड Alkali. अल्कली।
अल्कली इसका मतलब होता है फ्रॉम एशेस, ठीक है। ये एक तरह का अरेबिक वर्ड है, ठीक है, तो वहीं से डिराइव्ड है ये बेटा। नाउ सो like acids, we know bases also need to be classified in two way: organic base and mineral base. ऑर्गेनिक बेस बेसिकली, सी देखो, अभी तक तो आपने ये सीखा है ऑर्गेनिक का मतलब है प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला कुछ भी ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन मॉडर्न साइंस में ऑर्गेनिक का मतलब होता है कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसी के डेरिवेटिव, यानी कि उसी से को यूज करके बनाए हुए दूसरे दूसरे कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक बेस में आपको बताना चाहूंगा पिरिडीन। पिरिडीन एक तरह का ऑर्गेनिक बेस है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सारे कार्बन है, ठीक है। बात करते हैं मिनरल बेसिस की, यानी कि अर्थ मिनरल से मिलने वाला। पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या होता है, इसको इसका एक और नाम होता है कॉस्टिक सोडा। फिर आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब होता है कॉस्टिक पोटैश। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला बताता हूं बेटा साथ साथ में। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, इसका होता है KOH, इसका होता है MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट कम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। नाउ दिस इज क्लासिफाइड इन टू वे। कभी कभी आप पढ़ोगे इसको स्लेट लाइम बोल देते हैं, कभी कभी इसको बोल देते हैं लाइम वाटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि कब हम इसको स्लेट लाइम बोलेंगे और कब हम इसको लाइम वाटर बोलेंगे। क्वेश्चन क्लियर है आपको? सर एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है कि आप कई बार ऐसा ऑब्जर्व करेंगे बुक्स में पढ़ते वक्त, टीचर्स भी पढ़ाते हैं कभी कभी, तो कभी कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोल देंगे, कभी कभी इसको लाइम वाटर बोल देंगे। तो कब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलना चाहिए और कब लाइम वाटर बोलना चाहिए? लाइम वाटर जब सर मे CO2 बी हाँ CO2 की टेस्टिंग के टाइम उसको लाइम वाटर बोलना चाहिए मे बी। बाकी सारे टाइम स्लेक लाइम। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। आप आराम से इसके ऊपर पता कीजिए, इसको नोट करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए। फिलहाल इसको नोट कीजिए। ओके सर। ओके सर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया बेटा। मैं से बता रहा था वाटर सोल्यूबल बेसिस, उसके एग्जांपल देता हूं। NaOH, KOH, ये सारे वाटर बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उसे सिंपली हम क्या बोलते हैं, बेस ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सिंपल बेस है पर ये अल्कली नहीं है।
ये अल्कली नहीं है, सिंपल बेस है ये, लेकिन ये अल्कली भी है और बेस भी है। क्लियर है? ओके सर। इसी वजह से आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा अल्कली मेटल्स, पढ़ा है? यस सर। तो यस सर, अल्कली एक ग्रुप। मेटल्स का मतलब ही यही है कि ऐसे मेटल जो अल्कली बनाते हैं। क्लियर है? ओके सर। तो कोई एग्जांपल है सर? अभी जो दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस सर ओके। ओके। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है? यस यस सर, अल्कली है। मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला है। नो सर। सोचो। सर यस सर, मेरे ख्याल से। पता करोगे नेक्स्ट क्लास में? ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको आज। यस मेरा सर। क्वेश्चन ये है, यस सर। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है? तो अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो क्या इसको हम अल्कली कह सकते हैं? क्या मैं इसको अल्कली कह सकता हूं? क्वेश्चन मार्क। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, ले लिया सर। बाकी हो गया बच्चे भी सर। ले लें। लेट अदर्स टेक आल्सो। ले लिया सर। हो गया सर। गुड। रिटर्न सर। चलिए, तो अब हम चलते हैं अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस। अब अरेनियस ने क्या बोला बेसिस के बारे में? तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, a base is a substance which gives hydroxide ion, यानी कि OH नेगेटिव इन वाटर। तो कोई भी सब्सटेंस जो पानी में आपको क्या दे, K+ दे और OH नेगेटिव दे, हम क्या बोलते हैं? बेस। बेस। सिमिलरली NaOH है, इसको वाटर में डालोगे तो हमें मिलेगा Na+ एंड OH नेगेटिव। फिर बात करें किसकी? MgOH होल ट्वाइस की। इसको डालोगे पानी में तो ये आपको वही देगा Mg2+ एंड 2OH नेगेटिव। एक आता है NH4OH, इसको वाटर में डालोगे तो ये भी देगा आपको NH4+ एंड OH नेगेटिव। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हो कि जितने भी हैं सारे आपको क्या दे रहे हैं? OH नेगेटिव दे रहे हैं, यानी कि सारे क्या है? बेस। नाउ these bases are further classified into two categories. Can you name those categories?
Strong and weak bases. Yes. Strong base, weak base. And you know already that strong base is that base that undergo complete dissociation. And weak base undergo partial dissociation. Now you can see that this is undergo complete dissociation. So they are strong base. These are undergoing partial dissociation. These are weak base. So this is how we study bases according to Arrhenius. So Arrhenius के अकॉर्डिंग बेस वो है जो आपको पानी में OH नेगेटिव दे दे, और जो नहीं दे सकता वो बेस ही नहीं है. Okay, sir. कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू Arrhenius, मैंने नहीं बोली ये बात, Arrhenius ने बोल रहा है. जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ मेरा पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है. These are all statements given by Arrhenius. Noted? पार्शियल डिसोसिएशन. पार्शियल का मतलब ये होता है बेटा आधा, आधे से कम या आधे थोड़ा ज्यादा, पूरा नहीं है. सर ये पूरा क्यों नहीं है सर? पूरा तो है बेटा इसका जवाब तुम्हें 11th क्लास में मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट्स पढ़ोगे. ओके सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं आशा करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा, क्या स्क्रीनशॉट भी देख लिया होगा. ओके. यस सर. तो अब हमें क्या बात करना है? अब हमें बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की. वंस अगेन जहां से हम रुके थे वहीं दोबारा कंटिन्यू करेंगे. अगला है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल. तो मेटल्स के साथ आपके बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं हमें वो पढ़ना है. देखो हमने पढ़ा था जिंक का रिएक्शन किससे पढ़ा था? HCl से. इसकी रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे NaOH से. तो ये देता है आपको Na2ZnO2 plus H2. Here this compound name is सोडियम जिंकेट. another reaction is of aluminium. Aluminium can also react with NaOH and can give NaAlO2 plus H2. And here this compound is सोडियम. sodium aluminate. देखो क्या सारे मेटल, सवाल तो ये है क्या सारे मेटल बेसिस से रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं, No, सारे sir. मेटल नहीं कर सकते. देखो मेटल्स जो होते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं वो जनरली होते हैं बेसिक नेचर के, इसलिए वो जनरली किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से करते हैं. ठीक है. Am I audible to all of you? Yes, sir. यस सर. और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के, इसलिए वो बेस से करते हैं. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, विच आर एम्फोटेरिक. दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक भी बिहेव कर सकता है, बेसिक भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है. तो जिंक की अगर रिएक्शन HCl से कराओगे तो ये बेसिक बिहेव करेगा, बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस.
इसी का रिएक्शन अगर आप किसी बेस से कराओगे तो ये आपको एसिडिक बिहेव करके दिखाएगा, बनाएगा once again एक salt and hydrogen gas. The concept is very simple here. You can see that metal either reacting with acid or a base is forming salt and hydrogen. But the nature is changing. In the first case, it is acidic in nature. Sorry, in the first case, it is basic in nature, and in the second case, it is acidic in nature. क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So please note down this thing. It's a very important point. Yes, sir. इस एग्जाम में मेरे ये क्वेश्चन पूछा गया था, Zn reacts with NaOH. थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी. Yes, this is a very standard questions which comes in examination. और बेटा देखो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा एसिड क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि एसिड कब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता. सर कंफ्यूजन इसलिए हुई थी ना क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो पड़ा था, बट ये सिंगल मेटल्स विदाउट ऑक्साइड की वजह मतलब रिएक्ट कर रहे बेस के साथ, तो वो कंफ्यूजन हुई थी. नो इश्यूज, अब क्लियर हो गया है. आई होप अब आपको हाँ सर, दिक्कत नहीं बहुत है. अच्छे से क्लियर हो गया. नाउ जिस तरह से एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा था उस तरह से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको हम पढ़ते हैं एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So now, if I say that NaOH is made to react with H2SO4, so it is by default, it is clear that when a base or acid react with the base or base react with acid, we obtain salt and water. So we obtain once again salt, Na2SO4 and water. The reaction is already fixed. So this is a neutralization reaction, and once again the OH of base is neutralizing the H plus of acid, giving you water. This is the actual neutralization reaction which takes place. Like the reaction of metal oxides with acids, now we will see a reaction of non-metal oxide with bases. So next is reaction with non-metal oxide. CO2 ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये भी एक बेस है. क्या देगा आपको ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर. आप देख सकते हो क्या हुआ, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन बेस से हो रही है, तो वंस अगेन क्या मिल रहा है? सॉल्ट एंड वाटर. So here you can see how reaction is once again moving in the same pattern. In the earlier case, I said acid is made to react, acidic oxide is made to react, sorry, metal oxide is made to react with an acid and we obtain salt and water. Here, non-metal oxide is made to react with base and we are getting salt and water. The observable part here is that CO2 is acidic oxide and it is made to react with base, so obviously we'll be getting a salt. Similarly, when you are discussing CuO plus HCl, here this is basic oxide reacting with the acid, so we'll be getting a salt and water, nothing else. I hope this point is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Now, very important section. Now I want to discuss. पहले बेटे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. हो गया सर. आप एक बार बेटा यूजेस लिख लीजिए. देखिए NaOH को हम यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं सोप बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में. अगर आपको याद हो, आप सभी ने क्लास 8 में पढ़ा था फाइबर कौन सा? रेयन. आर्टिफिशियल सिल्क पढ़ा था, आप सभी ने, याद है? Yes, sir. हाँ सर. तो वहां पे हमने NaOH यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, विस्कस लिक्विड बनाने के लिए. सर रिपीट.
बेटा मैं ये कह रहा हूँ, जब आप रेयन का फॉर्मेशन करते हो तो आप NaOH यूज करते हो विस्कस लिक्विड बनाने के लिए। सेलुलोज में NaOH मिक्स करते थे ना, we mix NaOH in cellulose to obtain a viscous liquid, and that liquid is made to pass through a cylinder having very tiny holes and made to react with sulfuric acid. We obtain artificial silk. Remember that? नो सर, ये नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा तो अभी बता दिया मैंने कि नकली सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क कैसे बनता है। आजकल देखो बेटा वही है कि सिल्क सबको पहनना है, पर सिल्क हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर किसी के सिल्क की डिमांड को हम पूरा भी नहीं कर सकते। इतना कहाँ से लाएंगे सिल्क मौत, बेचारी की जान जा रही है, किसी को ये नहीं दिख रहा है। बस सबको सिल्क वाले कपड़े पहनने हैं, सबको तो सिल्क वाले कपड़े ही चाहिए। अब पढ़ा होगा सभी ने कैकून वगैरह। यस सर, पढ़ा है। हाँ सर उसको हॉट वाटर में डालते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीजें याद आ रही होंगी कि सिल्क सिल्क कैसे बनता है, कि वो अपने चारों शेल बना देता है, उसको हम गर्म पानी में डाल देते हैं। याद आया क्लास 8? यस Yes, सर। यस हाँ, सर। हम ज्यादा क्लास 8 में नहीं जाएंगे, हम क्लास 10 पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली वहां से एक पॉइंट देखो कितना अच्छा पिक किया है CBSE NCERT ने, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको याद हो, देखो हमने वहां भी NaOH यूज किया था, वो बेस ही था। हम सोप बनाने में भी यूज करते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में। पेपर बनाने में भी यूज करते हैं। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ठीक है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों की ब्लीचिंग करवाने में आता है काम, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में। हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम एज अ एंटासिड यूज करते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग के कारण बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है, जिसके कारण दिस पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is going to affect your stomach, and this is very painful if it is not treated in a proper time duration. So we can use magnesium hydroxide as an antacid. पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, कभी यूज किया है एंटासिड? सर सोडियम Yes, sir. हाइड्रोजन नहीं कार्बोनेट। सर पढ़ा है बस। बेटा सर- सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज मत कर लेना गलती से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला है मैंने। तुम लोग यार कभी गलती से सर दुकान सोडियम में हाइड्रोजन सामान- कार्बोनेट। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो घबरा गया था कि तू तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा है बेटा। नो सर, नो। खतरनाक खिलाड़ी नहीं बनना है। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। यस सर। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। ये दोनों ही क्या है, एंटासिड है, ठीक है। ये आपके जो कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें ये टेम्पररी रिलीफ कर देते हैं प्रॉब्लम। यस सर। पर किसी को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो क्या करेगा? एनी आइडिया? आप लोग आप में से किस बच्चे ने ये यूज किया है? किसी ने ये यूज किया है, ये यूज किया है कभी लाइफ सर में? बहुत बार। नो सर। तो क्या होता? नो सर। नहीं देखो बेटा, इंडाइजेशन एसिडिटी सभी को हो सकता है। हैव यू एवर टेकन इनो, हैव यू एवर टेकन Yes, sir. डाइजीन इन Yes, योर sir. लाइफ? वो है क्या? वो एंटासिड तो है बेटा। यस सर। बट वही डू तो यू बोल रहा नो दीज केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर यू, मतलब यू शुड नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स। सर तो फिर रिलीफ कैसे होगा? बेटर आइडिया देता हूँ। हाँ, ये बेटा इंस्टेंट रिलीफ हो गया, ये समझ रहे हो? ये एक इंस्टेंट रिलीफ हो गया। इफ समवन इज फेसिंग दिस डिसऑर्डर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आइदर ही शुड चूज झंडू पंचारिश, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, दिस इज समथिंग जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये बहुत ही इफेक्टिव और रिलायबल है, जो इस डिसऑर्डर को वो करता है, गायब करता है प्रॉपरली। और एक होता है नींबू का अचार। If you try to eat all these things, this is good. This is a home remedy. समझ रहे हो? हाँ यस सर। तो these are home remedies जो आप अपने घर पे ले सकते हो, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो मेरे एक नोन है, काफी अच्छे फ्रेंड है, नींबू का अचार तो सिर्फ सोरिन टेस्ट होता है। नींबू का अचार सारे टेस्ट होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। सिर्फ और सिर्फ वो नींबू नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ आप मिक्स करते हो। उसके कारण जो डाइजेशन डिसऑर्डर है, समझिएगा मैंने क्या बोला है, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं इसको, मतलब जिसका लंबे समय तक प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसको इस तरह के होम रेमेडीज लेने चाहिए।
we should not rely completely on heavy chemicals. Yes, sir. ठीक है? The idea is this: we are humans, and humans should rely on nature, and nature is plant. According to me, nature is plants, and these are the primary source of energy. So we should try to find out solution from them only. Yes, sir. ठीक है? Sir, वैसे which is more effective, Digene or Eno? Which is Which is more effective, Digene or Eno? Diazine or Nimbu? Digene और Eno में? No. Comparison between Daiichi and Eno. I personally, this is my personal experience. Eno is much better. I personally feel I have personally used it many times. Eno is much better. I according to me, it varies person to person. ठीक है? अब हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग है, तो किसी को डाइजिन सूट कर जाता है, किसी को इनो सूट कर जाता है, तो बॉडी रिएक्ट. ये जो डॉक्टर जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं बेटा, ये लॉजिकल हिट एंड ट्रायल खेलते हैं. ठीक है? ये आपके सिम्टम्स ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपनी 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 प्रीवियस नॉलेज को वो करेंगे, रिकॉल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हाँ ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम में ये टेस्ट हमें कराने चाहिए. ठीक है? अगर आप प्राइवेट में जाएंगे ना, अगर आपको फीवर है तो डॉक्टर छूटते ही बोलेगा लो जी ये 25-30 टेस्ट करा लो. बट डू यू नो 5 दिन के पहले, अगर जैसे आपको आज किसी को आज बुखार आया ना, तो 5 दिन के पहले कोई टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आती है. तो अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर्स आपको बुखार आने के 1 दिन के अंदर ही अगर कहता है ना कि हाँ टेस्ट करा लो, तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू कॉन यू. डू यू नो दिस थिंग? यस सर, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सर. इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है ना कई लोगों को. सर मुझे एक प्रॉब्लम थी इंसोम्निया की, बिल्कुल नींद वगैरह नहीं आती. तो मैंने उसका ट्रीटमेंट सब देखा था. उसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता. उसमें बस थोड़ी सी मेडिकेशन होती है और रिलैक्सेशन होता है. सर जैसे ही मैं गया हॉस्पिटल में, सर सीधा 60 टेस्ट लिख दिए, ये टेस्ट करवा के प्राइवेट हॉस्पिटल. That way he was trying to earn from you, and it was a private hospital, I believe. Yes sir, it was. That's very important. That's very important for see class 10 तक का जो साइंस है ना बेटा, वहां पे साइंस के साथ बच्चे को बेसिक नॉलेज भी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये केमिकल्स हम तो सीख जाते हैं, पर ये सारी बातें ये कोई नहीं सिखाता हमें. मुझे किसी ने नहीं सिखाई, ये लाइफ एक्सपीरियंस है. I have faced a lot just because of all these basic things. So you should guys know this thing that 5 दिन से पहले तो कोई टेस्ट रिपोर्ट ही नहीं आती. हाँ, you should consult a doctor as soon as possible. But if that doctor is saying कि हाँ फटाफट 30 टेस्ट करा लो, फटाफट ये करा लो, ऐसा नहीं होता. 5 दिन से पहले कोई रिपोर्ट्स नहीं आती. कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं. ना ब्लड रिपोर्ट, ना यूरिन रिपोर्ट, ना स्टूल रिपोर्ट, ना एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट, ना स्पिटम रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट काम नहीं करेगी. सो मैंने ये सारी नॉलेज बेटा मैंने भी डॉक्टर से ही ली है. ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई नेट से पढ़ा हुआ है. ये I have a background of doctors. I know lot of doctors which are working in Ayurveda, which are working in allopathy, which are working in AIMS, RML. So these people are very much connected with me, and I get these knowledge from these people, and I try to share these knowledge with my students so that they groom as an individual. Doesn't matter you are grooming well in a subject or not, but you should groom well as an individual. These basic. Sir, last question just as some बस ऐसे ही पूछ रहा था सर. अभी आपने बोला कि आयुर्वेद में वगैरह, तो सर मेरे को ये पूछना था, डू दे रिकमेंड ईटिंग नॉनवेज और नॉट? सॉरी बेटा, सॉरी. डू दे रिकमेंड ईटिंग नॉनवेज और नॉट? I don't think they recommend non-veg. Non-veg. See, I personally feel that killing an animal is not justified. This is my personal opinion. And logically देखा जाए 10% रूल तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि Yes, जो 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 एनिमल्स जो प्लांट्स खा रहे हैं, तो वो 10% कम एनर्जी आपको मिलने वाली है उससे. ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी. पर्पस ऑफ ईटिंग एन एनिमल इज जस्ट टू गेन एनर्जी. व्हाई वी आर ईटिंग फूड? जस्ट टू गेन एनर्जी, टू वर्क, टू इंश्योर वर्किंग ऑन बॉडी. लेकिन हाँ, नॉनवेज खाने के फायदे भी होते हैं. जैसे विटामिन बी सीरीज के बहुत सारे विटामिन होते हैं जो प्लांट्स में नहीं होते, पर ये एनिमल्स में होते हैं, मटन में होते हैं. तो I remember a stage in my life जहाँ पर मुझे विटामिन बी सीरीज की heavy disorder हो गई थी, but I was not able to detect this. Doctors were not able to detect this. Coincidentally, I got to know about this problem and it was sorted. बहुत लंबी कहानी का ही बताऊंगा,
So if you are eating non-veg, it is not an issue, but prefer using vegetarian lifestyle. There are a lot of things available on Yes. internet. You can go through that and you can choose your life accordingly. It's your Sir, choice. it even feels more peaceful. Sorry, Sir, it even feels more peaceful. vegetarian. Yes, sir. That's a kind of spiritual question because uh, I'm a vegetarian. I don't have any idea about this. Neither I went into deep of all these things, eating a non-veg and veg. I just see whatever you're saying is a spiritual statement. Ki if you are not killing an animal, definitely this is a kind of peaceful thing that you haven't harmed anyone to fulfill your need. But if I talk about our life cycle or food cycle, so everyone is eating everything. So if I talk about plants, they are also living thing. So some people may counter on all these things because you are eating a living thing. Animals are also living thing. They are also living things. So they are also non-veg. People give such kind of statements. So it's a very controversial question. I cannot completely answer this question that whether it is peaceful or not. It depends on person to person. Someone finds it peaceful, someone may not find it peaceful. I find peace in eating vegetarian food. I cannot eat non-veg. So that's personal choice. Person to person vary. Yes, sir. सर मतलब it feels very nice ये क्लास में interaction इतना होता है तो अच्छा लगता है. It's very important. Having a healthy discussion is always good. So we can have small little discussion about all those things which can add to your knowledge. And still, if you want to study whether we should eat veg or non-veg, you can Google out people's on YouTube. You can find search our videos on YouTube and can find renowned scholars speaking all those these things. इसे एक है फिट्यूबर करके एक लड़का है. मुझे उसके वीडियोस काफी अच्छे Yes, लगते हैं. sir. काफी सही चीज बताता है वो. मैं शेयर भी करता हूँ. रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम पे वाटर फिल्टर्स के ऊपर शेयर भी किया था. तो दैट इज समथिंग वी शुड दीज आर बेसिक थिंग्स वी ऑल शुड नो. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस. कि हमारे पास मान लो ये बीकर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसिड है, सिर्फ और सिर्फ HCl है, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है. इसमें अगर पानी मिलाना है तो कैसे मिलाएं? हाउ डू वी ऐड वाटर इन दिस एसिड? एसिड को वाटर में डाल लो. एसिड को वाटर में डालो. Slowly, कैसे करें? बकेट में भरकर डाल दें? सर ड्रॉप करके. सर ड्रॉप बाय ड्रॉप. sir, drop by drop and by steering it with a constant speed. Otherwise it will be an exothermic reaction. And it will vigorously fall our skin. It can be corrosive too. देखो इसको समझाने से पहले I would like to tell you one thing that acids, chemicals are not our friend if we are handling them carelessly. I have seen cases in laboratories, people getting harmed by careless activities. He is just an example. I am showing you a person. देखो इसने carelessly chemicals को झेला है और उसके वजह से आप देख सकते हो ये कैसे ये सारा का सारा एसिड इसके ऊपर आ गया. तो हुआ क्या? इसने आप अगर बेटा पानी में एसिड डालो या एसिड में पानी डालो, अगर एक साथ पूरी की पूरी बॉटल डाल दोगे तो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस हो सकती हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. क्या करें? हम दोनों केस डिस्कस करते हैं. पहला केस आता है एडिंग वाटर इन एसिड. सपोज ये आपका एसिड है और आपने इसमें क्या डाला? वाटर डाल दिया. जब आपने इसमें वाटर डाला तो होगा क्या? यहां पे होने वाली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिमेंबर, डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण हीट इवॉल्व होती है.
हीट इवॉल्व होने के कारण ये जो बीकर्स है बेटा, बीकर्स ब्रेक हो सकता है एंड दिस एसिड मे स्प्लैश आउट ऑफ द बीकर, कम ऑन द फेस ऑफ द पर्सन। बीकर टूट के बह सकता है, आपकी बॉडी पे भी आ सकता है। सो वाटर में एसिड डालना इज नॉट अ गुड आइडिया। सॉरी, एसिड में वाटर डालना इज नॉट अ गुड आइडिया। मोरोवर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एसिड कैन नॉट एब्जॉर्ब द रिलीज हीट। जब आप वाटर ऐड करते हो तो हीट जो रिलीज हो रही है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सॉरी एसिड वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसी वजह से एक बीकर टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम एक बीकर लें, इस बीकर में ले लें वाटर और एक ले लें ड्रॉपर, ठीक है, और ड्रॉपर से बूंद बूंद करके एसिड को डालें और स्टर करें। देखो जब आप एक ड्रॉप डालोगे वो डिसोसिएट होगा, एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली, हीट रिलीज होगा। वो हीट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब्स इवॉल्व्ड हीट, और उसको स्टर कर दोगे चारों ओर फैल भी जाएगा वो। फिर आपने एक और ड्रॉप डाली, फिर हीट रिलीज होगी, फिर से वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर एक ड्रॉप, फिर हीट रिलीज, फिर अब्सॉर्ब। So this goes on very slowly. You keep on adding acid in the water through dropper, ठीक है, and this way you can easily add acid in water without causing harm to yourself and to your friend or classmate who is working next to you in laboratory. बताओ बेटा क्या डाउट है? नो सर। सभी को समझ में आया? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we are moving to a very nice topic which is pH meter. पीएच मीटर नहीं बेटा, पीएच स्केल पढ़ेंगे हम। पीएच मीटर तो काफी एडवांस टॉपिक हो जाता है, बाद में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पीएच स्केल। अभी पीएच का मतलब क्या होता है? दिस इज पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर, सो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH scale is used to study concentration of H plus ion, concentration of OS negative ion. Are you getting my point? यस सर। The scale is used to study concentration of H plus ion और OS negative ion. Concentration का मतलब क्या है? कितना अमाउंट प्रेजेंट है इसका या इसका दिए हुए वॉल्यूम में। ये तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा 9th में। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला वेट परसेंट मास परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज। Yes, sir. ठीक है, यस सर। नाउ बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस, इसको थोड़ा समझना है हमें। इसको समझने से पहले वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ वाटर। वाटर की बात करूं तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। देखो वाटर जो है वीकली डिसोसिएट होता है, माने कि बहुत कम, वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक करके आपको देते हैं H प्लस और OS नेगेटिव। लेकिन हाँ, जितने H प्लस होंगे उतने OS नेगेटिव होंगे न्यूट्रल वाटर में, और यू कैन से प्योर वाटर में। प्योर वाटर में जितना H प्लस होगा उतना OS नेगेटिव होगा।
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाइड्रोनियम आयन। चलिए, एक साइंटिस्ट 1909 की बात करूं मगर, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया, उसे उन्होंने नाम दिया पीएस स्केल, दैट इज यूज्ड टू स्टडी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मैं आपको स्केल दिखाता हूं। So this is your pH scale. If I talk about this pH scale, it ranges from 0 to 14। आप देख सकते हो pH scale जो है ये 0 से 14 तक होता है। This is range of pH scale। ठीक है, देखो हुआ क्या, सोरेनसन ने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर में H+ भी है, OH नेगेटिव भी है। ठीक है, अब अगर मैं वाटर में एसिड डाल दूं, अगर मैं वाटर में एसिड डाल दूं तो क्या होने वाला है, या फिर आप कह सकते हो एसिडिक हो जाएगा वाटर, है ना। आसान भाषा में जो H+ Yes, आयन sir. कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले। लेकिन इसी वाटर में अगर मैं बेस डाल दूं तो वो बेसिक हो जाएगा। आसान भाषा में जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेसर देन हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने आपको बोला है एसिडिक सॉल्यूशन जब हुआ तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, बेसिक जब हुआ तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट गया। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक, उस सॉल्यूशन में H+ भी है, OH नेगेटिव भी है। am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसी चीज को पकड़ के पीएच स्केल तैयार किया गया। P छोटा होता है, H बड़ा होता है, ऐसे लिखते हैं। तो इस पीएच स्केल की मदद से सोरेनसन ने बताया कि अगर pH लेस देन 7 आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक। अगर pH बराबर है 7 के तो वो क्या Neutral. है, न्यूट्रल है। अगर pH 7 से बड़ा है तो वो Basic. क्या है, बेसिक है। Basic. ठीक है, बेसिक। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, यहां मैं कह रहा हूं कि H+ आयन जो है वो ज्यादा है OH नेगेटिव आयन के मुकाबले। H+ आयन जो है वो बराबर है OH नेगेटिव आयन के मुकाबले, और H+ आयन जो है वो कम है OH नेगेटिव आयन के मुकाबले। क्या ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये वो स्क्रीनशॉट लो बेटा। यस सर, ले लिया। Okay, sir. डन सर, Yes, रेडी। sir. हो गया सर। ओके, अब इस पीएच स्केल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो पीएच स्केल का एक फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच स्केल, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। आसान भाषा में हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच, ये फॉर्मूला होता है।
तो अगर मैं बोल रहा हूँ पीएच कितना है 2, तो आप बोलोगे सर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻² मोलर। अब ये एम, कैपिटल एम क्या है, इसको हम बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर ये समझ नहीं आया सर, pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन। ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना अपना बोला। यस सर। Okay. So now you have a range of pH in front of you. देखो सोरेनसन ने ये तो ऑब्जर्व कर लिया था कि जो पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, है ना? पीएच एक तरह का स्केल है जो बस बताता है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उसने बोला अगर आपको पता करना है कि H प्लस आयन कितना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें 10⁻⁻pH मोलर। एक कैपिटल एम क्या है? इस कैपिटल एम को हम कहते हैं मोलारिटी। 11th-12th तो पढ़ोगे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का मोल प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो अगर आप कह रहे हो कि सर पीएच जो है वो 2 है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 10⁻⁻² मोलर, यानी कि 0.01 मोलर इतना आएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कितना है? 0.001, इसको आप बोल सकते हो 10⁻³ और ये जो है इसमें जो ये वैल्यू होती है पीएच की वैल्यू होती है। कितना है पीएच? 3। ठीक है। यस सर, आगे समझ। नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं, रब नहीं, एक बार इसको जूम कर लेते हैं। बेटा ये स्केल देखो एक बार, इस स्केल को अगर ध्यान से देखो तो मैं इसने क्या बोला है 0 से 6.99 तक ये क्या है? एसिडिक है। 7.01 से लेकर के 14 तक ये क्या है? बेसिक है। और इस 7 पे क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल। अब आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 3.5 तक ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3.5 से 6.99 तक क्या होगा? वीक एसिड। 7.01 से 10.5 तक वीक बेस होगा या वीक अल्कली कह लो। उसके बाद होगा स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली। जैसे जैसे आप यहां जा रहे हो एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है? यस सर। तो याद रखना एज यू मूव टुवर्ड लेफ्ट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन क्या है? बढ़ रहे हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? घट रहे हैं। एम आई राइट? यस सर। जैसे जैसे आप इस ओर जाते हो तो H प्लस आयन क्या हो रहा है? घट रहा है। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? बढ़ रहा है। क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बेसिक कैरेक्टर तो OH नेगेटिव के कारण ही बढ़ेगा। यस सर। ठीक है। नाउ दीज आर बेसिक पॉइंट्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा ये सब। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। अब Yes, sir. सपोज
आपको कोई बोले कि आपके पास 0.01 मोलर HCl है, तो उसका पीएच बताओ कितना होगा, तो क्या बताओगे? 10 to the power minus सर 7. 1 है पीएच। सर इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, 10 की पावर -2 हाँ मोलर सॉरी 2 है पीएच। HCl में। और आपको पता है जो माइनस की पावर में आएगी वही उसकी पीएच होगी, तो पीएच कितना आया 2। ये इजी फॉर्मूला मैंने दिया है। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया टॉपिक? स्कूल में ये पढ़ लिया ये सर, बट ये PS फॉर्मूला स्केल स्कूल पढ़ में लिया नहीं सर, ये लिखा। चलिए मैं फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, इसके बारे में पता करना आप। अगर मैं कहूँ 10 की पावर -7 मोलर HCl दिया हुआ मैंने, तो इसका पीएच कितना होगा? 7 7 ही होगा। मतलब आप कह रहे हो कि एसिड न्यूट्रल होगा? वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लग तो 7 है। क्या ठीक सर। बेटा बहुत दूर से बोल रहे हो, लगता है आपने फोन वोन साइड में रख दिया है, माइक को पास में लाओ। नहीं सर, मैं डेस्कटॉप यूज करता हूँ ना, तो मेरा माइक डेस्कटॉप पे रखा रहता है और मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ। ओहो हो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोला बेटा आपने? क्या बोला बेटा? सर मैंने कहा था कि ये इसलिए लग रहा है मेरे को 7 इसका सर। पीएच ये 7 आएगा या 7 से कम आएगा, 7 से ज्यादा आएगा? 7 से 7 कम ही आना है चाहिए। सर कम है। बेटा ये होमवर्क है आप सभी के लिए, ये सर, कम आपका आना चाहिए। ये होमवर्क है, पता अच्छा। करो। सारे टीचर से अपने जितने केमिस्ट्री मास्टर को जानते हो पता करो, ठीक है? गूगल अंकल से पता करो, देखते हैं कौन पता करके लाएगा इस चीज को। देखो बेटा, देखो आइडिया क्या है, आइडिया ये नहीं है कि आप टीचर को जज करो, आइडिया ये है कि आप थोड़ा सा एफर्ट दो। जब आप ये सब क्वेश्चंस पे ऊपर एफर्ट डालोगे ना, आप खुद से थोड़ा गूगल करोगे, दूसरे जो टीचर से पूछोगे, तो आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को वो करूंगा क्रॉस चेक, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। आपको वैसे मैं बता देता हूँ, पीएच इज लेस देन 7, नॉट 7। एसिड का पीएच कभी 7 हो ही नहीं सकता ना। यस सर, इट इज वेरी लेस Not concentrated very less, acid. not very less, it is just less than 7। वो कैसे, उस प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा आपको, बट पहले आप इसके ऊपर पता करके लाओगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है? सर कम कैसे हुआ? क्या सर 7 से कम कैसे हुआ सर? ज्यादा ज्यादा भी जादू तो। होगा बेटा, ये तो अगली क्लास में दिखाऊंगा जादू करके कि पीएच 7 से लेस कैसे होगा। ओके सर। अब आपके सामने मैंने कुछ वो रखा हुआ है, कुछ सब्सटेंसेस के पीएच मैंने मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होता है 0, डाइल्यूट का होता है 1, हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसका 1.4 होता है, लेमन जूस इज 2.5, विनेगर इज 4, विनेगर इज सिरका एसिटिक एसिड। सर एग्जैक्ट 0 पॉसिबल है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं है तो हो जाएगा। वैसे मेरा एक सवाल बेटा, एक सवाल और आया है, मैंने आपको बताया 0 से 14 होता है पीएच स्केल, क्या पीएच लेस देन 0 हो सकता है? क्या पीएच ग्रेटर देन 14 हो सकता है? ये भी आपका होमवर्क है, नहीं हो सकता। होमवर्क दिया है भैया, पता करो, ऐसे जवाब मत दो। ओके। So when I say something, there must be some reason or there must be some vision behind that. So try to find out, ठीक है? ये एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी, हम ये सोचते हैं कि जो हमें पता है बस वही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। बट ऑलवेज कीप अ लर्निंग एटीट्यूड, ऑलवेज be in the nature of accepting any kind of diversity. So when you accept variations, you accept explorations in your life. When you explore, you learn, and when you learn, you improve, and when you improve,
you will be respected in society. Okay, so next you can see coffee here. Coffee have 5.0 pH, soft drinks have 6 pH, milk is 6.5, pure water is 7. एक और क्वेश्चन, ये आ रहा डिस्टिल वाटर और ये रहा टैप वाटर, पीएच किसका 7 होगा? सर डिस्टिल्ड वाटर का। क्यों? क्यों होगा सर? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, क्यों होगा? डिस्टिल्ड वाटर शायद प्योर नहीं कुछ। देखो बेटा, होता क्या है, टैप वाटर है या फिर ओपन वाटर है, ओपन सोर्स का वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है। तो पीएच इसका 7 नहीं होने वाला, इसका पीएच 7 होगा। ओके सर। आपका जो माउथ का सलाइवा होता है बिफोर ईटिंग फूड इज 7.4, आफ्टर ईटिंग फूड इज 5.8। इसीलिए बोलते हैं ब्रश करना चाहिए। ये जो ब्रश में वो नहीं है, बोलते हैं कि हमारे ब्रश में ये, हमारे टूथपेस्ट में ये है, हमारे टूथपेस्ट में वो है, हमारे टूथ में हीरो की चमक है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है आपको। यू जस्ट नीड अ टूथपेस्ट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ बेस। अगर सर ऐसा क्यों सिर्फ टैप वाटर ही रिएक्ट करता है CO2 के साथ, कार्बोनिक एसिड डिस्टिल क्यों नहीं करता? ये डिस्टिल वाटर जस्ट निकाला आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप इसको भी ओपन में रख दोगे एक आध घंटे तो इसका भी पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। अगर आप ओके सर। लेबोरेटरी में जाओगे ना तो ये डिस्टिल वाटर जो होता है ये छोटे छोटे बॉटल्स में होता है, उसको उसके ऊपर पाइप्स लगी होती हैं और उसको पंप करोगे, इट इज जस्ट लाइक जो आपने होली पिचकारी यूज करते हैं ना, उसके ऐसा ही होता है। तो आप उसको पंप करोगे उस पर्टिकुलर पाइप से वो निकलेगा। जैसे हमारा जो सैनिटाइजर की बॉटल होती है, हम पंप करते हैं तो वो बाहर आता है, वो कुछ इस तरह का ही होता है वो। तो आप एक बार गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। तो ओपन नहीं है वो कंप्लीटली। सर पीएच कैसे मेजर Okay, करते हैं? पीएच अभी स्केल तो से। बताया बेटा। हाँ, पीएच मेजरिंग, पीएच मेजर करते हैं पीएच मीटर से, ठीक है। पीएच Okay, मीटर आपको दिखाऊंगा मैं आपको। हालांकि ये सारे आपके बीएससी एमएससी के लेवल पे आते हैं जब उसको यूज करते हो आप। अभी आपको पीएच मीटर का काम नहीं कराया जाएगा। डिजिटल मीटर होता है, इसमें क्या होता है, ट्यूब सी होती है, उसके बॉटम में बल्ब लगा होता है, उसको आप सॉल्यूशन में डिप करते हो और डिजिटली रीडिंग आ जाती है कि पीएच कितना है, 5 है, 6 है, 7 है। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। तो यहाँ यस सर। खाना खाने के बाद सलाइवा तो जो है 5.8 हो जाता है। तो इसलिए हमें रात को ब्रश करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आपके दांत डेंटिस्ट को प्यारे हो जाएंगे। इसके बारे में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं ब्लड। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, एक्स का होता है 7.8, टूथपेस्ट इज 8, देख सकते हैं 8। दैट इज जस्ट बिकॉज वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर एसिडिक नेचर। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एसिडिटी के लिए यूज कर रहे हो 8.5, वॉशिंग सोडा 9.0। सर ये यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कोरोसिव होता है। मिल्क मैग्नीशिया 10.5, इसे यूज कर सकते हो क्योंकि नॉन कोरोसिव, ये माइल्ड कोरोसिव है, ठीक है। सर क्यों सर जरूरी है सर? हाँ ये बेटा, ये बेसिकली इस तरह से इसका बिहेवियर है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH होल्ड ट्वाइस है। बेकिंग सोडा क्या है, Na2CO3 है। उसमें जो अनायनिक पार्ट है कार्बोनेट अनायन है बेटा, ठीक है। और जो बाय कार्बोनेट है HCO3 और CO3 2 नेगेटिव, इसमें वेरिएशन है, ये अलग अलग है बेटा। तो ये डिफरेंट अनायन के कारण इनका जो बेसिक बिहेवियर है उसमें फर्क आता है। ओके सर। आपका NaHCO3 है, इसमें ये अनायंस है। Na2CO3 में क्या है, Na प्लस है और CO3 2 नेगेटिव है। अब इस अनायन में और इस अनायन में तो फर्क है ना, सॉरी इस अनायन में, इस वजह से ऐसा होता है। देन हाउस होल्ड अमोनिया घर में यूज होता है 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, कॉन्सेंट्रेटेड 14। अब देख सकते हो कि किस तरह से पीएच वैल्यूज वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंस टू सब्सटेंस। So if you have a corrosive substance, it is going to harm you.
जितने भी आप एसिड या बेस खा सकते हो सारे माइल्ड एसिडिक होते हैं, माइल्ड बेसिक होते हैं, नॉन कोरोसिव नेचर के होते हैं. These are not going to harm your body. Understood? यस सर. यस तो सर. ऐसा कोई भी सब्सटेंस अगर यश आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है. ओके. सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस which have pH of 0, 1, 2, 3 or pH of 12, 13, 14, this is harmful for our body. इस पे क्वेश्चन उठता है कि सर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसका 1.4 होता है, तो उस पर्टिकुलर गैस्ट्रिक जूसेस से बचाने के लिए हमारी बॉडी Mucus. स्टमक में म्यूकस सर. म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जब वो डैमेज हो जाता है ना तो वही एसिड फिर बहुत प्रॉब्लम करता है. सर एस्पिरिन, बहुत पेनफुल था, बहुत आप मुझे सभी ने प्रॉब्लम मेडिसिन थी. सुनी होगी. एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या करता है? इंटरनल ब्लीडिंग करता है. ट्राई टू फाइंड आउट एस्पिरिन क्यों बैन हुआ. बैंड. यस, एस्पिरिन इज बैन. तो क्यों बैन हुआ? इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है बेटा एस्पिरिन. ओके सर. सर तो यूज किस लिए करते हैं सर मतलब बेटा जो हमारा स्टमक होता है ना उसके वही म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है और ब्लीडिंग आ जाती है स्टमक के अंदर. तो एस्पिरिन इज अ वेरी हार्मफुल मेडिसिन. अगर आप सभी सुना होगा कि जो ऑक्सफोर्ड जो कोरोना वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रही थी, दैट फेल्ड एंड दे स्टॉप्ड दिस पर्टिकुलर रिसर्च एंड ट्रायल ऑन दिस कोरोना वैक्सीन, क्योंकि एक आदमी बीमार पड़ गया उस वैक्सीन के कारण. तो जब आप कोई वैक्सीन डेवलप करते हो, the whole and sole idea about generating any mass production of any vaccine or medicine is it should be a medicine of no side effect or minimal side effect. तो जब आप जो खाते हो ना वो मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं जो आपको कभी कभी मालूम भी नहीं पड़ते. बस अगर आप उसे लॉन्ग टर्म नहीं खा रहे हो, 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन खा रहे हो, तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा. वो आप सभी ने देखा भी होगा. Am I right? यस सर. यस यस सर. सर. तो जो कोरोना वैक्सीन तैयार हो रही थी दैट फेल्ड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. और ऑक्सफोर्ड सर जो रशिया ने बनाई है वो तो मतलब एकदम बेकार है. रशिया में रशिया ने जो डाउटफुल बनाई, है. हाँ, रशिया उसका में डाउटफुल 10% है. सक्सेस रेट है बस. थिंग इज कि इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग योर ट्रायल सक्सेस, कि अगर आप जो आपने मेडिसिन बनाई उसका ट्रायल सक्सेस रेट क्या है, जस्ट ये कहना कि मेरी बेटी के ऊपर ये इंप्लीमेंट हुआ इज नॉट सफिशिएंट. यू नीड टू गिव सम सॉलिड ग्राउंड्स ऑफ एनीथिंग व्हिच यू आर सेइंग. इंडिया में भी कोवैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है. हाँ सर. तो आई डोंट नो अभी कोवैक्सीन का चल रहा है, अंडर ट्रायल ही है वो भी, उसका भी पूरा तरह डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है. तो आई सर होप बीच में बाबा रामदेव की आई थी रामदेव ने कोरोना. स्टार्ट की. he is just a Corona. businessman. He is just a businessman. He is not any doctor or something like that. So he is just doing something. हाँ, that can be act as a immunity booster. लेकिन इस तरह से आप ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में आप ये बोल देना कि ये कोरोना की दवा निकाल दी हमने, दिस इज highly irresponsible statement given by him. However, I believe कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, बिकॉज ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, सीरियस इशू है. और इसको आप just because you want to sell anything, that is not the way. This is not the way. This is going to tar your image also. Am I right? यस सर. यस सर. यस सर. आप बोल सकते हो कि हाँ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा या हाँ आपको अंदर स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन ये बाकी सबको बेवकूफ कह देना, या आपने जो ट्रायल्स किए हैं वो नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक्स पे थे और आपको जो आपने कंप्लीटली गाइडलाइंस को फॉलो भी नहीं किया है, तो अपनी बेइज्जती खुद करवाना इज नॉट गुड. यस. तो इस तरह की चीजों, इस तरह के स्टंट से किसी को भी बचना चाहिए, चाहे वो रशिया हो चाहे बाबा रामदेव हो, ठीक है. तो पीपल्स आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, बट फर्स्ट पुट एफर्ट, prove it, then come in front of people that yes we have done it. And here we have to think in the nature of mankind. We need not to think in who will be first. I am very much sure that China have the vaccine of this coronavirus, because
until unless they don't have this vaccine, they cannot control this. And they have completely controlled this, and they are enjoying and doing pool concerts in Wuhan now. That's a clear sign that they have completely controlled this in China, and that is just because of vaccine they have. But they are not disclosing it right now because they know that if they will disclose this, this is going to put an impact on them only. That yes, they had the vaccine, they had the virus. It is just because to disrupt the economy of the country or of the world also. यस सर। ठीक है, तो बहुत ये बेटा पॉलिटिक्स है, ये सारा वो वर्चस्व लड़ाई है बेटा, पावर की लड़ाई चल रही है, सबको सुपर पावर बनना है। ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत नुकसान होने वाला है। अभी तो वैक्सीन नहीं है, तो वी आर स्टिल इन सेम सिचुएशन, इनफैक्ट इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड जस्ट टेक केयर सर इंडिया की जो इमेज थी वो भी बहुत बुरी तरीके से टार्निश हो गई। हमारा देश ना इकलौता ऐसा देश था G20 नेशंस में जिसका वो इकोनॉमी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में चल रहा था। अभी तो इतना बुरा गिरा कि -24 पे पहुंच गया। -23 पॉइंट समथिंग है। हाँ, जीडीपी बहुत नीचे चली गई। हाँ, जीडीपी गई है, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत सारी चीजें हैं। मतलब different news channels say different thing, and let's not get into all these things now. हम सिर्फ मेडिसिन की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, इनोवेशंस की बात करेंगे। इकोनॉमी सोशल थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है ना। यस सर, इसमें बहुत अच्छे डिबेट्स आते हैं और इसका आउटपुट कुछ नहीं है। And I personally feel that this arts mentality I should not carry. I don't carry. In fact, I believe in research. I believe in innovation. I believe in serving mankind. Yes. नो सर, नो सर, कुछ बताओ बेटा, बोलो. You are free to talk. नो सर, नो सर। So, I hope आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। सर केल्विन सर कब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी सर? बस बेटा अर्न कर रहा हूँ मैं। क्लास तो हो गई थी कंप्लीट, जस्ट मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सर पूरे साल सर केल्विन में वही सर ऐसे ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? बेटा देखो दो चीजें होती है, एक होता है ऑफलाइन क्लास, एक होता है ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास में तुम्हें पता है कोरोना खतरा है, तो मैं पर्सनल तो मैं चाहूंगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आए ऑनलाइन ही चले आप लोगों का, क्योंकि लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू नो दैट कि एक बार आप हॉस्पिटल गए, वापस आओगे नहीं आओगे नहीं पता है कुछ भी, या कोई मैं गया वापस आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं पता मुझे। तो लेट अस प्रे कि चीजें वैक्सीन जल्दी आए, और तब तक बेस्ट सोल्यूशन तो ऑनलाइन है। यस सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट सर। चलिए आज की क्लास हम एंड करते हैं बेटा। गुड नाइट सर, टेक केयर सर, बाय। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट Good night, सर, sir. बाय बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट सर।